students, welcome back in the class. So today we are going to start with a new chapter, and I think so this chapter you must be aware of, that is environmental pollution. I know you all are aware of the pollution, that what kind of pollutions are there and how or what are the precautions which we can take. So in this chapter we are going to learn about the different types of pollution which are causing on the earth and which is leading to ozone depletion. Ozone, I will explain you that also. So basically the main object, or you can say the learning object of this chapter is you will come to know about the different types of pollution and कैसे वो होते हैं and what are the precautions to be taken, और हम लोगों को ऐसे क्या करना चाहिए so that the pollution level gets little lower, मतलब कम हो जाए pollution level. ठीक है कि आजकल के टाइम पे if you see that there is a lot of pollution, mainly air pollution, which is very harmful for us because in this environment oxygen is very important. But instead of we are not increasing the level of oxygen, but we are increasing the level of other harmful gases which are not good for ourselves as well as all the living things or living animal on this earth. Okay, so we are going to learn about the three different types of pollution, their causes, how they are caused. Okay, so what is pollution? General question जो हमेशा every time we ask the student that what do you understand by pollution. So my dear students, pollution होता है क्या? Pollution is the process by which air, soil, water and other natural resources become dirty. Okay, I will write for you the definition of pollution. Pollution is the process by which air, water, soil and other natural resources gets affected, or you can say becomes dirty. Gets affected, or you can say become dirty. Okay, so this is the pollution. Now natural resources, the meaning of natural resources here is all the resources which we are getting from nature, that is soil we are getting from nature. Okay, and petroleum, petroleum is not counted in pollution, but these plants, trees, these are all we are getting from the nature. So that is why they are saying that natural resources. Yeah, petroleum also comes under your natural resources. Minerals also come under your natural resources. Energy sources, forest, land, all these comes under your natural resources. So all these things are getting affected by pollution. Okay, who the people who are affecting these natural resources? We as a human being, we are the people that you can say human beings are really causing the harmful activities which are polluting our environment, which are polluting the nature which we have. Okay, as you all know that this only earth is the planet where life exists. और किसी planet पर life exist करती है नहीं करती है, but earth is the only planet where life exists. But
we as a human being living on this earth, we are not caring about the nature, and we are creating harmful activities due to which our environment, such a beautiful environment is getting affected because of our human activities. Not only we are not only affecting the environment which is present over here, but the animals, animals को भी harm कर रहे हैं. कैसे? For example, हम forest को काट देते हैं for our own need or for making big big buildings or factories. उससे क्या होता है कि हमारी जो नेचर है, हमारा जो वाइल्ड एनिमल्स है, वी आर डिस्टर्बिंग देयर होम्स. हम उनके घरों को एक तरीके से खत्म कर रहे हैं, हम उन्हें मार रहे हैं. ठीक है, बिकॉज हम फॉरेस्ट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद व्हाट वी यूज टू डू, हम अपने लिए करते हैं. हम फैक्ट्रीज बनाते हैं, हम वहाँ पे बड़े बड़े लैंड्स घर बना देते हैं. पर जो एक्चुअली में एनिमल्स है वो कहाँ जाते हैं, उनका क्या होता है, दैट वी नीड टू थिंक अबाउट. उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है. अगर हम अपने लिए अपना घर बना रहे हैं, then why we are disturbing other animals' house? Okay, because this earth is for them also, not for the human beings. Now we are going to study about the four main types of pollution. So we will study about types of pollution. So what are the four main types of pollution? That is air pollution, water pollution, then we have soil pollution, and then we have noise pollution. Okay, number one we have air pollution. Second we have water pollution. Third we have soil pollution. And number four we have noise pollution. So these are the main important types of pollution that we are going to study about, and what are the causes, or you can say what are the कैसे ये हमारे अर्थ को अफेक्ट कर रहा है. सो एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन मेनली हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वी नीड ऑक्सीजन टू लिव इन, राइट? इफ ऑक्सीजन विल नॉट बी प्रेजेंट देयर, देन हाउ कैन वी लिव? It is very difficult for us to breathe, right? So my dear students, that is why oxygen is very important for us. But we are we are cutting down trees. हम large number पे trees cut कर रहे हैं, and हम plants को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उगा रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है? The level of oxygen is getting decreased, and level of other harmful gases like your carbon dioxide, helium, methane, all these types of gases, their level is getting increased, because of which air is getting polluted. Okay, so जो harmful धुआं होता है, जो चिमनी से निकलता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से निकलता है, वो क्या कर रहा है? हमारे एयर को और पोल्यूट कर रहा है. ठीक है, इट इज नॉट ओनली दैट जहाँ पे वो है उसी एरिया को वो पोल्यूट कर रहा है, बट उसके आसपास जितने भी अदर विलेजेस है या फिर अदर सिटीज है, स्टेट्स है, उस फैक्ट्री के आसपास they are affecting them also. Okay, and the animals, the birds which are present over there, they are getting affected by this air pollution.
and this pollution, this air pollution is very harmful for our health. You know, the other types of gases that is not, you know, for our body. Our body needs only oxygen, okay, and what we are doing, we are decreasing the level of oxygen and increasing the level of carbon dioxide and other harmful gases in the environment, which is, you know, very harmful for us as well as all the living beings, living animals which are present on this earth, or it is harmful for all of them. Now, causes of air pollution. What are the main causes? क्या ऐसे है जिससे हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है? Number 1 is, you know, smoke and poisonous gases which are, you know, emitted from cars and factories. Emitted मतलब निकलते हैं, ठीक है, जो हमारे कार्स फैक्ट्री से हार्मफुल गैसेस निकल रही है, वो एक मेन कॉजेज है. सेकेंड इज योर, हम ड्राई लीव्स, वुड्स, ओके, प्लास्टिक्स, ये हम क्या करते हैं, इनको प्रॉपर डिकम्पोज करने के बजाय हम इनको जला देते हैं, राइट. तो उनसे भी क्या है, गैसेस निकलती है, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं. प्लास्टिक को अगर हम जलाते हैं तो दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि उससे बहुत ही इंटॉक्सिकेंट गैस निकलती है जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है. कोल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब चीज़ों को जब हम जलाते हैं तो इनसे हार्मफुल गैसेस एमिट होते हैं, विच इज ऑल्सो, यू नो, कॉजिंग एयर पोल्यूशन. नाउ वी हैव दिवाली आते तो वी आर वेरी हैप्पी दैट, यू नो, दिवाली हैज़ कम एंड ऑल, और हम खूब सारे क्रैकर्स बर्न करते हैं. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. वी शुड मेक एनवायरमेंटल पोल्यूशन फ्री दिवाली. That means दिए जलाओ, make a special dishes, call your friends and family and then celebrate. Why to burst crackers? Because उससे कुछ नहीं होता है, it's just for a fun and हमारा environment pollute हो रहा है उससे, air pollute हो रहा है, क्योंकि वो भी harmful chemicals से बने होते हैं जो crackers होते हैं, okay? And जब हम उन्हें burn करते हैं then they release the same harmful gases which is very bad for our health. You must have seen, दिवाली के दूसरे दिन ऐसा लगता है बहुत ही foggy सा environment है ना. वो foggy सा environment क्यों होता है? Because of the air, because of the harmful gases which we create. हम लोग as a human being create कर रहे हैं. कैसे? By bursting out the crackers जला के, ठीक है, वो धुआं निकलता है उसमें से और वो हमारे environment में काफी टाइम तक रहता है. You must have seen that. Then we have cutting down of trees, जिसे हम बोलते हैं deforestation. ओके, क्या बोलते हैं उसे? deforestation. Deforestation क्या है? When we cut trees in a large number, या cutting down of trees in a large number is called deforestation. हम प्लांट्स को बहुत ज़्यादा काट देते हैं, ट्रीज को काट देते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम दोबारा प्लांट्स नहीं, रिफॉरेस्टेशन नहीं करें. रिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट्स को उगाना, वो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है. दिस इज ऑल्सो, अब क्या होगा, प्लांट्स कटेंगे, ट्रीज कटेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी हमारे एनवायरनमेंट में, है ना. बिकॉज ट्रीज आर द ओनली थिंग विच, यू नो, रिलीज ऑक्सीजन फॉर आवरसेल्व्स, फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर अदर एनिमल्स. तो ट्रीज क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो कम हो रहा है, and the level of carbon dioxide, or you can say the other harmful gases are, you know, increasing day by day, and which is affecting the environment. Okay, then we have, कभी-कभी होता है कि natural चीज़ें हो जाती है, like volcanoes हो जाता है, forest fires हो जाते हैं, sandstones हो जाते हैं. Okay, so these are also, you know, the causes of air pollution. अब इससे, you know, हो क्या रहा है और चीज़ें. Now, हमारी हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो रही है, ओके, एज ह्यूमन बीइंग, बिकॉज हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए. देन हमारे, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कहाँ जाते हैं, हमारे लंग्स में जाते हैं, हमारे लंग्स की तरह हमारे हार्ट में जाते हैं. देन बॉडी का सर्कुलेशन होता है, राइट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड में भी ऑक्सीजन पाया जाता है ना. तो क्या हो रहा है, जब हम हमारी एनवायरनमेंट ही ठीक नहीं है, हमारा एयर ही ठीक नहीं है, तो
क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लंग्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, है ना। आप लोगों को पता है कि अगर हम हार्मफुल गैसेस इनहेल करेंगे दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। मे बी हमें कुछ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज हार्मफुल गैसेस, बिकॉज वो हमारी बॉडी को सूट ही नहीं करता, हमारी बॉडी को तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, राइट। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान कैसे रखना है, कैसे इन सब चीज़ों को हमें बचाना है, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब चीज़ों को हमें कैसे बचाना है। और क्या होता है इससे, पोल्यूशन से हमारा जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बेटा, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा जो ग्लेशियर, हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत ही हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारे जो ग्लेशियर्स है वो पिघलने लगते हैं, हमारे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स विच वी हैव, एटमॉस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओके। तो ये क्या डिफरेंट लेवल्स है हमारे अर्थ के, ठीक है, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन की है उनसे हमें बचाता है। जो वो लेयर है दैट लेयर इज गेटिंग अफेक्टेड, हमारे ओजोन लेयर है जो अर्थ को अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, होल हो रहा है, छेद हो रहा है, ठीक है, दैट इज प्रॉब्लम कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट। तो ग्लोबल वार्मिंग basically increasing the carbon dioxide level and decreasing the level of oxygen, and which is very harmful for us and creating you can say हमारा जो environment है that is getting affected now। और दूसरा है then अब क्या होता है जब environment में इतना सारा जो है गैसेस प्रेजेंट है, जो तो कभी बारिश भी होती है तो एसिड रेन होती है, एंड दैट एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल। हमारा इन्वायरमेंट है, ऊपर से बारिश होगी तो क्या होगा, जो हार्मफुल डस्ट है, डस्ट एंड पार्टिकल्स है ना, वो क्या होंगे, नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे तो क्या, वो डस्ट एंड पार्टिकल्स तो हार्मफुल है ना, दैट मे अफेक्ट द लैंड, लैंड को अफेक्ट करेंगे। you must have seen that आगरा में ताजमहल है, राइट, एंड दैट ताजमहल इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल्स। अब क्या वो धीरे धीरे येलो पड़ने लगे हैं, वाई, बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन। हम अपने एयर को इतना पोल्यूट कर रहे हैं, जब रेन होती है तो जब वो डस्ट एंड पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं तो वो एक तरह का केमिकल ही होता है जो नीचे गिरता है, राइट। अगर उसके तो अगर 3, 4, 5, 6 दिन तक लगातार बारिश हुई दैन इट इज ओके, लेकिन जो फर्स्ट रेन होती है दैट इज हार्मफुल, और उस बारिश में आपको नहाना भी नहीं चाहिए। तो क्या हो रहा है, वो व्हाइट मार्बल्स में वो गिर रहे हैं तो वो धीरे धीरे हमारा जो ताजमहल है वो येलो पड़ रहा है, ठीक है, तो एसिड रेन भी इंक्रीज होता है। अब हमें क्या करना चाहिए, आई हैव टोल्ड यू अबाउट ओजोन लेयर आल्सो, दैट इज आल्सो गेटिंग अफेक्टेड थ्रू द अल्ट्रा वायलेट रेज, ओके, जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज होती है विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन। अगर हमारी स्किन में वो अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ गई तो क्या होगा, उससे हमारी स्किन तो मे बी कैंसर तक हो सकता है, तो दैट इज वेरी बैड, ओके, वी आर अफेक्टिंग। अब क्या है, क्या हमें वो चेंजेस लाने चाहिए, या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या फिर हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर, हाउ वी कैन स्टॉप दिस एयर पोल्यूशन। reforesting or you can say growing number of trees, बहुत ज़्यादा trees उगाने चाहिए, वेस्ट जो है वो प्रॉपरली डिकम्पोज करना चाहिए, ओके, एंड स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज जूट बैग्स और अदर बैग्स लाइक जो न्यूज़पेपर से बने हुए होते हैं, ओके, सो दिस टाइप वी कैन यूज। एंड जो फैक्ट्रीज से हार्मफुल गैसेस निकलते हैं उसे भी हमें थोड़ी कम करना चाहिए, लाइक, ओके, क्यों, अगर वो हार्मफुल गैसेस निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एमिट होगी तो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे, ओके। देन जो चीज़ वी कैन डू, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स हमें नहीं जलाना चाहिए। अगर इफ़ यू वांट तो थोड़ी फुलझड़ी वगैरह जला लो, है ना, पटाखे वगैरह क्यों जलाने, आसमान में रॉकेट छोड़ना, दैट इज नॉट गुड।
हम फुलझड़ी छोटी सी जला सकते हैं, वो ज़्यादा हार्म नहीं करता है, ठीक है। या you can light up your houses with candles, with different types of lights which come, prepare dishes, right? तो ये हम कर सकते हैं। use of these kerosene and all. Suppose not suppose like अगर एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, पांचों के पांचों अगर कार से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके का पोल्यूशन ही हम कॉज कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट, इंस्टेड ऑफ having 5 cars in a house, we can have only one, or we can use transportation, public transportation. वो क्या करता है, at a one time it drops a number of people to their destinations. एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को लेके जा सकते हैं ना, इससे क्या होगा, पोल्यूशन जो गैस एमिट होती है, हार्मफुल गैस, वो कम हो सकती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, these are the precautions which we should take. Now number second, my dear students, we have water pollution. Water pollution. So my dear students, now comes water pollution, and water pollution and other pollution I will explain you in my next video. For the time being, go through this chapter